दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स में चैप्टर 7 फ्रैक्शंस पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हमारे इस वीडियो का आनंद उठाइए। आज के इस फ्रैक्शंस चैप्टर में हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से संबंधित चर्चा करने वाले हैं। तो एंजॉय कीजिए हमारे इस वीडियो का। लेट अस स्टार्ट। Equivalent fractions. What do you mean by equivalent fractions? Two or more fractions are called equivalent fractions if they have same value. मतलब अगर दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस आपके पास हैं और उन सभी फ्रैक्शंस का वैल्यू सेम है तो उन सारी फ्रैक्शंस को कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, to find an equivalent fraction of a given fraction, you may multiply both the numerator and the denominator of the given fraction by the same number. अगर आपको हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पता करना है तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर में भी वही नंबर रहेगा और डिनोमिनेटर में भी वही नंबर मिलेगा। तो जो फ्रैक्शंस हमें मिलेगा दैट फ्रैक्शंस इज नोन एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, दूसरे तरीके से टू फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वी में डिवाइड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। यहां पर अगर बहुत बड़ा फ्रैक्शंस दिया हुआ है तो हम सेम नंबर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने से जो फ्रैक्शंस आपको मिलेंगे वो भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस, ये सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन have no common factor except 1, then the fraction is said to be in its simplest form or in lowest term. दोनों बातें एक ही हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म कहा जाए या फिर लोएस्ट टर्म में कहा जाए तो हमें क्या करना है, उस फ्रैक्शंस में देखना है कि कोई भी कॉमन फैक्टर ना रहे। फॉर एग्जाम्पल 25 by 100, this is a fraction and we will divide this fraction by 25 in the numerator and denominator both, then we will get here 25 बन जाए 25, that is in the numerator 1 and 25 4 जा 100, so this is 1 by 4 and this fraction is known as simplest form or in the lowest term. For second example, 6 by 18. So here we will divide numerator and denominator by the same number, that is 6. So 6 divided by 6 and 18 divided by 6, we will get 1 by 3 and this 1 by 3 is known as simplest form or in lowest term. Let us another example, 10 by 100. So here you can say that a common factor is 10 in the numerator and denominator. So we will divide it by 10, numerator and denominator. We will get 10 1 ja 10 and 10 10 ja 100. So 1 by 10 is also a simplest form or in lowest term. So dear, here is the first topic is equivalent fractions. So let us enjoy the video. Fraction. Okay, so if we take a fraction that is 1 by 2, if we take a fraction that is 1 by 2, okay, now if we multiply numerator and denominator both by a number 2, then we will get 2 1 ja 2 and 2 2 ja 4. After that, in the second case, we take this fraction 1 by 2 and here we will multiply by 3 in numerator and denominator both,
then we will get this is 3 by 2, 3 ja 6. And again, if we take the same fraction, that is 1 by 2, and here we will multiply it by 5 in both numerator and denominator, then 1 by 5, 1 into 5, that is 5, and 2 5 are 10, so this is 5 by 10. And again, if we take this same fraction, that is 1 by 2, and here we will multiply by 10 in the numerator and denominator both, then we will get 10 1 ja 10 and divide by 10 2 ja 20. So these all fraction, that is 1 by 2, 2 by 4, 3 by 6, 5 by 10 and 10 by 20, all are equivalent fraction. Okay, because these fractions we get by multiplying of a same number. Okay, so dear, let us another question I will take here. This is 50 divided by 100. This is also a equivalent fraction. How can you say that it is equivalent fraction? Yes, we will divide this fraction by 50 in numerator and denominator both, then we will get 51 ja 50 and 52 ja 100. So we will get 1 by 2. This is the 1 by 2. So it means 50 by 100 also a equivalent fraction. Means अगर हम किसी भी फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करें और वही फ्रैक्शन हमें फिर से मिल जाता है, तो इस टाइप के फ्रैक्शंस को हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को याद रखना होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है या फिर सेम नंबर से ही उसे डिवाइड करना है. आप अलग अलग नंबर नहीं ले सकते हो. आप सोचो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करें, तो आपका जो फ्रैक्शंस होगा वो आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगा. तो इस टाइप के फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ओके, नाउ so here is the first question, that this is the circle and this half part is shaded, and in the second diagram this is given again a circle, and here is the this two parts of this circle are shaded, and here is the third circle given here, and in this circle 3 parts is colored. So dear, here is this all parts are shaded, and after that one more circle is given here, and here is and these all parts are shaded. So here is the first question. Write the fractions or all these fractions are equivalent. सबसे पहले हमें fractions लिखना है और फिर ये बताना है कि वो equivalent है. So here is the given figure, and here we will first write the fractions for each figure and then tell about the equivalent fractions. So let us enjoy it. So how to write the fractions in the fractions form, dear? You can say that this is circle and this is just half part is shaded. Both parts are equal. Total is one circle, and out of 2 parts 1 is shaded. So you can write 1 divided by 2. Okay. Now for this there are 4 parts. So you will write here 4. And 2 parts shaded, so you will write 2 just into the numerator. And here is, you can say that total 1 2 3 4 5 6 parts are there,
and 1, 2, 3 parts are shaded, so you will write it as 3 by 6. And similarly for this circle there are 1, 2, 3, 4 portions formed. Now question says these are equivalent. Yes, your answer is yes, all are equivalent fraction. Why these are equivalent fraction? Because you can say that 2 by 4, you can cancel it by the table number 2. 2 1 ja 2 and 2 2 ja 4. So you will get 1 by 2. And here you can cancel it by 3. 3 1 ja 3 and 3 2 ja 6. That you can write it as 2 1 ja 2 and 2 2 ja 4. Here is 3 1 ja 3 and 3 2 ja 6. And here is 4 1 ja 4 and 4 2 ja 6. So in all cases you will get 1 by 2. So this is 1 by 2, this is 1 by 2, this is 1 by 2, this is also 1 by 2. It means these all are equivalent fraction. Okay. So your answer is yes, all are equivalent fraction. Now part number B is given here, so you can solve it yourself as you see in first part. Now moving for question number 2, write the fraction and pair of the equivalent fraction for each row. तो यहाँ भी आपको क्या करना है कि पहले आप सभी का फ्रैक्शन बनाएंगे। आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आप देख सकते हैं, मैंने आपको शो कर दिया। This is the question number 2. So in the part number here is answer and question both are given. So you can write here for this fraction a part, because there are two parts and one is shaded, so it is 1 by 2. And here is total 6 part, you can count 6, and 4 part is shaded, so you can write is 4 by 6. And here you can say that there are 9 parts, so and 3 parts are shaded, so you can write is 3 by 9. And similarly here is you can say that 1 2 3 4 and 4 8 parts and 2 parts are shaded, so you can write is 2 by 8. And in the last E part there are 4 parts and 3 parts are shaded, so you can say that 3 by 4. This is 3 by 4 represented all fractions. Now in here first part, second part, third, fourth and fifth, here you can say that total parts, how many total parts? 1 2 3 4 5 6. In this 6 part, and here is 6 part and here is also 6 part, so 6 3 ja 18 and total shaded part is 6. तो 6 by 18 आप लिखेंगे। 6 by 18 को अगर आप सिंप्लीफाई करो तो क्या मिलेगा 1 by 3, बिकॉज 6 1 जा 6 एंड 6 3 जा 18, तो आपका हो जाएगा 1 by 3। और यहाँ पे आप देखिएगा कि टोटल कितने पार्ट्स थे, यहाँ पे 9 पार्ट्स थे, तो यहाँ पे आपने क्या फ्रैक्शन लिखा था 3 by 9, और इसको 3 और 9 को 3 से कैंसिल कर दीजिए, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो यहाँ भी क्या आएगा 1 by 3 और यहाँ भी आएगा 1 by 3। तो आपको क्या करना है, इसका पेयर बनाना है। तो यहाँ पे सी पार्ट का पेयर आपका कौन सा हो जाएगा वो आपको लिख देना है, ठीक है। तो किस तरह से आप इसे लिख पाएंगे, आपको सबसे पहले इसके फ्रैक्शंस लिखने हैं और फ्रैक्शंस लिखने के बाद सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। ठीक, जैसे मैंने मान लीजिए ये करके दिखाया, देखिए यहाँ पे दिस इज 1 by, सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो 1 by 2, सो यू विल राइट इन द आंसर ए टू थर्ड। ओके, आप लिखेंगे ए और एरो बना के लिखेंगे थर्ड सेकेंड, सर सॉरी, ए और एरो बनाएंगे सेकेंड के लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ भी 1 by 2 है और यहाँ भी 1 by 2 है। बी में देखिए 2 by 3 है और यहाँ पे 4 में 2 by 3 है, तो आप बी लिखेंगे और एरो बना के लिखेंगे 4। कैसे आंसर लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 का मैं आपको आंसर बताता हूं।
क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लिखेंगे, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें सबसे पहले आप उसके आंसर को लिखेंगे। हियर इज ए पार्ट इज गिवन दैट 1/2 just equal to 1/2, and B part is 4/6, and 4/6 can be written as 1/3, or sorry 2/3, so you can write is 2/3, and C part is written as 3/9 from the diagram, ये diagrams देख के लिखना है, so it is 1/3, and D part is 2/8, and 2/8 is written as 1/4, and last one E part is given here. For the part number E, you can write it as 3/4, and 3/4 you cannot cancel by any number, so this is written as same to same, that is 3/4. And for the diagram, you can write here first part is given that 6/18, and 6/18 is written as 1/3, and for the second part it is 4/8, and 4/8 is written as 1/2. ओके, हाँ बोलिए। हाँ अभी बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट में क्या करना है, थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है 12/16। 12/16 को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 3/4, और फोर्थ पार्ट में आपको यहाँ दिया हुआ है फॉर द पार्ट नंबर 4 दिस इज 8/12, तो इसे आप 4 से कैंसिल करेंगे तो 2/3 आएगा, और फिफ्थ पार्ट में आपको यहाँ दिया है 4/16, 4/16 को आप लिखेंगे तो ये आपका आएगा 1/4, ठीक है। अब ये आपने सिंप्लीफाई करके लिख लिया, अब आपको इसका आंसर लिखना है, अभी आंसर नहीं हुआ, अब आंसर आपको अभी लिखना है। तो आंसर क्या, देखिए ये डायग्राम दिया हुआ था, पार्ट नंबर ए में देखो कितने टोटल पार्ट्स दिए हैं, 2 पार्ट्स, और सैडिड कितने हैं 1, तो 1 सैडिड है, 2 पार्ट्स हैं, तो इसे लिख लिया जाएगा 1/2। आप देखो यहाँ पे लिखा गया 1/2। इसके बाद बी पार्ट में आपने में कितने टोटल पार्ट्स हैं, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल पार्ट 6 हैं, और सैडिड कितने हैं 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/6, देखिए यहाँ 4/6 लिखा गया है, और कितना है 2/3, सिंप्लीफाई करने से आएगा। कैसे सिंप्लीफाई किया आपने, ये होगा 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, 2 से इसे डिवाइड कर लिया। इसी तरह से नेक्स्ट में देखिए टोटल पार्ट्स कितने हैं 9 है, काउंट कर लो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 9 हो जाएंगे, और सैडिड कितने हैं, सैडिड पार्ट है 3, तो 3/9 को आप लिख सकते हो 1/3। और इसके बाद यहाँ पे देखिए कितने पार्ट्स हैं, टोटल पार्ट्स हैं यहाँ पे 4, और सैडिड कितने हैं 4, 3 सैडिड हैं, तो 3/4 इसका आंसर होगा। तो 3/4 को आप किसी से कैंसिल नहीं कर सकते हो, तो 3/4 आपका इसी तरह रहेगा। अब आप देखिए यहाँ पे ये क्या दिया है, टोटल पार्ट्स 18 दिए हैं, आप काउंट कर लो, और टोटल सैडिड कितने हैं 6, तो ये 6/18 होगा, और 6/18 को आप कैंसिल करेंगे 6 के टेबल से, तो 6 1 जा 6 6 3 जा 18, तो 1/3 हो जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पे देखो टोटल कितने पार्ट हैं, 8 पार्ट हैं, और सैडिड कितने हैं 4, 1 2 3 4, तो 4/8 लिखोगे, और 4/8 का मतलब कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, 1/2 हो जाएगा। इसी तरह से आप आगे के काउंट करके यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। अब जब आपने ये लिख लिया तो आप देखिए फिर क्या होगा, अब आपको इसको मैच करना है, पेयर बनाने हैं। तो देखो 1/2 आपको ढूंढना पड़ेगा, यहाँ 1/2 है और यहाँ 1/2 है, ठीक है। तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, आप इसका आंसर इस तरह से लिखोगे, A2 किसमें है, सेकंड पार्ट, ये आपका पेयर हो गया, और यहाँ पे लिखोगे इक्वल टू 1/2। फिर आप देखो यहाँ 2/3 है,
तो 2/3 इसमें ढूंढना पड़ेगा। 2/3 यहाँ फोर्थ पार्ट में लिखा है, यहाँ बी पार्ट है, तो आप लिखोगे B2। किस तरह से आपको लिखना है, B2 4 पार्ट, और इसका आंसर कितना है 2/3, तो आप यहाँ लिख दोगे 2/3। फिर आप देखिए यहाँ पे अगला सी में क्या लिखा 1/3, तो सी आपने लिखा 1/3। अब आपको ढूंढना पड़ेगा 1/3 आपका कहाँ पर है, ये फर्स्ट नंबर पर ही है, तो यहाँ फर्स्ट लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 1/3। और डी पार्ट में आपको क्या करना है, डी पार्ट में आप एरो लगाएंगे। यहाँ पे आप देखिए कि डी पार्ट में कितना है 1/4, तो यहाँ 1/4 आपका है फिफ्थ पार्ट में, तो यहाँ फिफ्थ पार्ट लिखेंगे इक्वल टू 1/4। और लास्ट में आपका पार्ट नंबर ई है, तो ई पार्ट में आप देखेंगे कि कितना लिखा है 3/4, और यहाँ 3/4 थर्ड पार्ट में है, तो यहाँ आप लिखेंगे पार्ट नंबर थर्ड, और आंसर कितना है 3/4। तो इस तरह से आपको पहले डायग्राम देखना है, डायग्राम से ये फ्रैक्शन को लिखना है, फ्रैक्शन से उसे सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करके आप दूसरा डायग्राम देखेंगे सेकंड पार्ट में, उसको भी सिंप्लीफाई करके फिर आपको मैच करना है। तो मैच आप इस तरह से करेंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंप्लीट हो गया। अब आप बढ़ते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसे कैसे करोगे आप, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। 2/7 and equal to 8 by बॉक्स। इस बॉक्स में आपको फिल करना है। तो आप पहले तो ये क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखेंगे अपनी कॉपी में, उसके बाद इसका फिर सॉल्यूशन होता है। तो कैसे लिखना है 2/7 इक्वल टू, अब आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 8, ठीक है। तो आप इसे कैसे करोगे, आप बताओ कि 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको 8 मिल जाएगा। तो देखो 2 में अगर आप 4 मल्टीप्लाई करते हो तो 8 आपको मिलेगा, ठीक है। 2 इंटू 4 इक्वल टू 8, तो आपने यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई किया 4, तो 4 ही आपको यहाँ डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप 4 को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 28, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 8 बाय, कितना लिखोगे यहाँ पे 8/28, ये आपने यहाँ पे चेंज करके लिख दिया। तो यही आंसर हो गया आपका, ठीक है। मान लो आपको बी पार्ट बताना है, बी पार्ट आप कैसे करोगे, तो चलो बी पार्ट एक और समझ लो कि कैसे करना है। 5 करना है, तो आप क्या करोगे, आपने पहले क्वेश्चन लिखा 5/8 इक्वल टू 10 और यहाँ बॉक्स हो गया, ठीक है। तो अब आप देखिए ध्यान से 5 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 10 हो जाए, ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो कि डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो आपको पता चल गया 2 से मल्टीप्लाई करें, मतलब 5 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आएगा। तो अगर आपने 5 में 2 से मल्टीप्लाई किया है, 5 में अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/8, और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए को ऑन करिए, और थर्ड पार्ट में जल्दी से बताइए 3/5 है और यहाँ पे बॉक्स बाई 20 है, तो क्या फिल करोगे, देवराज वर्मा आंसर देंगे 3/5 और यहाँ पर है आपका बॉक्स बाई 20। तो बताओ फटाफट क्या यहाँ बॉक्स में फिल करेंगे, देवराज वर्मा बताएं जल्दी से कि यहाँ बॉक्स में क्या भरना है। हाँ बताइए, नाम बताओ पहले। 12, वेरी नाइस, योर आंसर इज 100% करेक्ट, तुम्हारा आंसर एकदम सही है, 12 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 12 कैसे आया, अब देखो मैं एक बार इसे बता देता हूँ कि आपने क्या किया, यहाँ पे 20 दिया हुआ है, 20 में 5 से डिवाइड कर लो। किरण आंसर दो जरा, 18/24 है, तो बॉक्स में क्या फिल करोगे
किरण फटाफट आंसर दो। मेथड भी लगा लो। 5 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 20 हो जाए? तो 5 में 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 ही यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। 3 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। अब यहाँ पे एक पार्ट मैंने और ले लिया, पार्ट नंबर कर देंगे इस क्वेश्चन का। आदित्य तिवारी अपना माइक्रोफोन ऑन करो और इस क्वेश्चन का आंसर दो। 18/24 और यहाँ पर है आपका बॉक्स बाई 4। बताओ बॉक्स में क्या भरेंगे जल्दी से। ई पार्ट का जल्दी से आंसर दो। रौनक अब आंसर दो फटाफट, माइक्रोफोन ऑन करो और आंसर दो। हाँ हाँ, रुको रुको, आप पहले किरण को आंसर देने दो। के जो नाम आ रहा है वो किसका नाम है, पापा का नाम है या आपका है, वो इस क्वेश्चन का आंसर दो। आप जो आंसर दे रही थी वो आंसर दें, क्या आंसर आएगा यहाँ पे? 3 आएगा। तो देखो, जो बच्चे इसे ध्यान से समझेंगे उसी को ये समझ में आएगा। अगर आप ध्यान से नहीं समझोगे तो आपको आंसर नहीं आएगा। तो देखो ध्यान से, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं, दो तरीके हैं, दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो। जैसे ये बॉक्स फिल करना है तो इसके नीचे नंबर कितना लिखा है, 20, और यहाँ पे नीचे नंबर कितना लिखा है, 5। तो 20 को 5 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 5×4 = 24 आएगा। तो 4 ही यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, जो भी नंबर आया वो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। 4×3 = 12, तो आपको यहाँ 12 फिल करना है। इसी तरह से आप दूसरा तरीका भी लगा सकते हो। ये 5 है, बोलो 5 में क्या मल्टीप्लाई करोगे 20 हो जाए? तो सोचना पड़ेगा थोड़ी देर। 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही हो, 5 ही होगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही होगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 होगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो क्या मल्टीप्लाई किया, 4, तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 12 हो गया। इसी तरह इस क्वेश्चन में भी देखो, यहाँ पे 24 दिया है और यहाँ छोटा नंबर दिया है। छोटा नंबर दिया है, इसका मतलब 100% आपको ये डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। या फिर यहाँ वो, हाँ, तो देखो यहाँ 24 को 4 से डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तरीका बताओ। 4 में, हाँ माइक्रोफोन ऑफ कर लो। यहाँ 4 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 24 हो जाए? बताओ, छोटे नंबर को हमेशा मल्टीप्लाई करना होता है। तो 4 में आप 6 मल्टीप्लाई करोगे, है ना? तो आप यहाँ पे भी आप देखो, 4×6 = 24 हो रहा है कि नहीं? अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तो आप डिवाइड करने वाला रूल ही वहां लगा दीजिए। 24 को 4 से डिवाइड करोगे तो 6 आ रहा है, और 18 को चूंकि आप 4 से डिवाइड कर रहे हो तो कितना आ रहा है बताओ? हाँ, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3। ठीक है, तो इस तरह से आप फिर इसे कंप्लीट करोगे। अब चलिए और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आने वाले हैं। और इसका ए पार्ट हमने आपको ले लिया। ए पार्ट में क्या है, डिनोमिनेटर 20। यहाँ पे आपको करना क्या है, आपका डिनोमिनेटर जो 3/4 है, इसका डिनोमिनेटर 20 बनाना है। तो देखो, यहाँ पे आपका जो फ्रैक्शन था 3 और 5 हमने लिख लिया। इसका सॉल्यूशन देखो, तो आप देखो यहाँ पे इसको 20 आपको बनाना है। तो 5 को क्या मल्टीप्लाई करोगे कि यहाँ पे 20 हो जाए? सिंपल है, 5 में आप 4 कर, तो यहाँ पे आप 4 मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हो तो मैंने आपको बताया सेम नंबर से भी दोनों जगह करना, यहाँ भी 4 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 12/20। बस यही आंसर है, अब आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन समझ लो। हमने ले लिया पार्ट नंबर डी, ले लिया डी। डी पार्ट में आपका लिखा हुआ है न्यूमरेटर ना 27, न्यूमरेटर 27। तो देखो, सबसे पहले तो आप अपना फ्रैक्शन लिखो। फ्रैक्शन क्या है, 3/5। 3/5 को ही करना है और किसी को नहीं। तो 3/5 को हमने लिख लिया। अब देखो, इसको 27 बनाना है।
तो 27 न्यूमरेटर को बनाना है, न्यूमरेटर ये होता है, डिनोमिनेटर ये होता है, तो न्यूमरेटर में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 27 हो जाए? तो देखो न्यूमरेटर में अगर आप हाँ, हाँ, एकदम सही, तो भी आपको यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसका आंसर लिख, तो 3 9 जा 27 और 5 9 जा 45, ये इसका आंसर हो गया और यहीं पे इसको छोड़ देना है। तो इसके बाकी के पार्ट भी आप इसी तरह से कर लोगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में भी ऐसे ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे कहा है कि इसको भी आप चेंज करो, तो कैसे चेंज करोगे? लिखा हुआ है 36/48 और ये कह रहे हैं कि न्यूमरेटर को 9 बना दो। ठीक है, आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है कि फ्रैक्शन है आपका 36/48। अब इसे आपको कन्वर्ट करना है जिसका न्यूमरेटर 9 हो जाए। ए पार्ट में आपको दिया है न्यूमरेटर 9, तो इसे सिंप्लीफाई करना है, आपको डिवाइड करना है किसी टेबल से कि आपका ये 36 है वो 9 हो जाए। तो अगर आपको कुछ नहीं आता है तो सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करोगे, फिर 3 से करोगे, फिर 4 से करोगे, फिर 5 से करोगे, और अगर आपको डायरेक्ट ही समझ में आ जाता है तो आप सीधा सीधा लिखोगे। देखो कैसे सीधा सीधा, 36 को हमने 3 से डिवाइड किया है ना, कितने 4 से, देखना ध्यान से, 4 से डिवाइड कर दिया, और अगर यहाँ 4 से डिवाइड किया तो ये भी 4 से ही होगा, तो इसको भी हमने 4 से ही डिवाइड कर दिया। अब देखिए 4 9 जा क्या होता है, 4 9 जा होता है 36, और यहाँ पे 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। लीजिए न्यूमरेटर में 9 आ गया। कैसे 9 आया? आपने यहाँ पे देखा 36 में अगर 1 से डिवाइड करोगे तो फिर 36 ही आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 18 आएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो 12 आएगा, और अगर 4 से डिवाइड कर दोगे तो 9 आ जाएगा। तो 9 ही आपको चाहिए था। ऐसे ही इसका बी पार्ट कर लोगे। इसके बाद फिर क्वेश्चन लिखा है चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट, ये क्वेश्चन नंबर है 6। तो यहाँ भी आपको सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करना है मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 बताता हूँ। तो जैसे 7 क्वेश्चन करो, रिड्यूस पूछा है, रिड्यूस आपको पूछा गया है, ठीक है। अब फ्रैक्शन आपको दिया है 48/60, तो देखो मैंने यहाँ पे लिख लिया 48/60, ये पार्ट नंबर ए है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो यहाँ है 48/60, ठीक है। तो इसको कैसे रिड्यूस करोगे आप? देखो रिड्यूस करने के कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप 2 से डिवाइड करो, 3 से करो, 4 से करो, तब तक डिवाइड करते रहो जब तक ये सब किसी से डिवाइड होना बंद हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम 2 से डिवाइड करते हैं, ध्यान देना। मान लीजिए आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ 2 से डिवाइड करना स्टार्ट कर लोगे। डिवाइड कर लिया 2 से, 2 सबसे छोटा नंबर है, सभी क्वेश्चन में ये कर सकते हो। तो देखो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, ठीक है। और 60 से को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6 और 0 ऐसे ही। अब आप इसे फिर से 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। कब तक करना है, जब तक ये डिवाइड होना बंद ना हो जाए। तो 2 से फिर से डिवाइड कर लिया, तो यहाँ पे ये इसका आंसर कितना आ जाएगा, 24 और 15। अब आप अच्छे से जानते हो कि 15 तो 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो अब आप 3 से डिवाइड करना शुरू करोगे। डिवाइड बाय 3 और डिवाइड बाय 3। तो देखो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 8 जा 24 होता है, 3 5 जा। अब आप देखो कि ये 5 तो किसी से डिवाइड नहीं होगा, 5 केवल 5 से ही होगा। तो इसका मतलब अब आप किसी भी नंबर को इससे डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 5 से 8 डिवाइड होता नहीं है। तो आप आपका डिवीजन यही खत्म हो गया और यही इसका आंसर हो गया। इसी को हम कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। अब एक और दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है कि आपके यहाँ पे जो नंबर लिखे हैं, दूसरा सेकंड मेथड समझ लो।
सेकंड मेथड में आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। फर्स्ट मेथड में तो आपको, ये मेथड था फर्स्ट मेथड में तो आपको 2 से डिवाइड करना था, 3 से डिवाइड करना था, 4 से डिवाइड करना था, जब तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक यहाँ पे छोटा सा छोटा नंबर ना आ जाए और वो नंबर किसी भी एक टेबल से डिवाइड ना हो। प्राइम नंबर्स इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 5 प्राइम आ गया, इसका मतलब ये किसी से डिवाइड नहीं होंगी। को प्राइम, इनको को प्राइम कहते हैं। को प्राइम का मतलब है जिसमें कोई भी ना फैक्टर कॉमन ना हो। तो आप देखो सेकंड मेथड में क्या है, ये जो दो नंबर लिखे हैं इसका हम एलसीएम लेंगे। दूसरा तरीका ध्यान से, 60। तो देखो इसके फैक्टर आपको लिखने हैं, कितने फैक्टर हैं 40 का। तो वन फैक्टर सब किसी का भी होता है, 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है, 4 भी इसका फैक्टर है, 5 से ये डिवाइड नहीं होगा, 5 नहीं है, और 6 भी इसका फैक्टर है, और 6 के बाद में आपका जो नेक्स्ट है वो 8 भी इसका फैक्टर है, और 12 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, 24 से भी हो जाएगा, और 48 तो होगा ही होगा। इसी तरह से 60 में देखिए, ये 60 में 1 तो होगा ही, 2 भी होगा, 3 भी होगा, और यहाँ पे 4 भी होगा, 5 भी हो जाएगा, 5 से भी ये 60 डिवाइड हो जाएगा। 5 के बाद फिर आपका यहाँ पे 6 और 10 भी हो जाएगा, 6 कर लिया, 10 कर लिया, और 10 के बाद 20 और 30 भी इसका फैक्टर होगा। तो आपको यहाँ पे इसके बाद लास्ट, तो आप देखिए यहाँ पे कि इसमें कॉमन नंबर कौन सा है, कॉमन देखना पड़ेगा, विच वन इज कॉमन। यहाँ पे आपका 12 भी डिवाइड होगा, 12 से भी डिवाइड होगा, और 10 से भी डिवाइड होगा। तो आपको देखना है कि यहाँ पे सबसे बड़ा कॉमन नंबर कौन सा है। देखिए बड़ा 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, और 12 भी है, और 12 के बाद फिर कॉमन कुछ नहीं है। तो सबसे बड़ा कॉमन नंबर है आपका 12। तो आप यहाँ से डायरेक्ट 12 से डिवाइड कर दोगे, 48 डिवाइड बाई 12 एंड 60 डिवाइड बाई 12। तो देखो सीधा आंसर आ जाएगा आपका, ये आंसर कितना हो जाएगा, ये आपका होगा 12 3 जा 14, सॉरी 12 4 जा 48, 12 4 जा 48 एंड 12 5 जा 50, ठीक है। तो ये आपका आ गया 4/5। और यहाँ पे देखिए ये 4/5 क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे जब आपने, यहाँ देखिए ध्यान से, जब आपने इसे 2 से डिवाइड किया था तो किसी बच्चे ने बताया नहीं कि यहाँ पे क्या आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12, यहाँ पे आएगा 12। 12 को आपको 3 से डिवाइड करना है, तो 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 4 ही आएगा। तो यहाँ भी इसका आंसर आ गया 4/5, और यहाँ भी इसका आंसर आ गया 4/5। तो ये तो फैक्टर लिखने वाला बड़ा मेथड है, थोड़ा समझना पड़ेगा। तो ये सबसे आसान है। इसमें क्या करना है, पहले 2 से डिवाइड कर लो, फिर 2 से तब तक करते रहो जब तक हो रहा है, फिर 3 से डिवाइड करो, 3 से तब तक करो जब तक हो रहा है, फिर 4 से या 5 से करो, और तब तक करो जब तक इस तरह का छोटे से छोटा नंबर ना मिल जाए। आप देखो 4 और 5 अलग अलग नंबर आ गए, यहाँ पे किसी भी एक टेबल से इसे डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा सिंपलेस्ट, इसी को बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, और इसी को बोलते हैं रिड्यूसिबल फॉर्म, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन बचा हुआ है 8 और 9। तो 8 और 9 क्वेश्चन आप करेंगे, हमने आपको भेज दिया है गूगल क्लासरूम पे, वहां से उसको देख करके आप समझ। ये ये 7.3 एक्सरसाइज चल रहा था, 7.3। 7.3 के मैंने अभी आपको सभी क्वेश्चन बताए थे। 7.3 ये चल रहा है। 7.3 का हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया, सेकंड बताया, थर्ड बताया, ठीक है। तो ये 7.3 चल रहा था। अब 7.4 में, हाँ बोलिए। 6 वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं बताया, मैंने बताया था ना, जैसे 7 नंबर क्वेश्चन है
7 बताया ना ऐसे, तो इसी तरह से 6 वाला भी करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में जैसे, हाँ मैं बताता हूँ सुनो ध्यान से। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 5/9 और 30/54 दिया है ए पार्ट में, ठीक है। तो 30/54 को सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले बदलना है। जैसे ही आप बदलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इक्विवेलेंट है कि नहीं है। तो आपने देखिए 30/54 को जब चेंज करोगे तो आपका आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा मालूम है? 30/54 को जब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो इसका आंसर, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो, मैं आप। So, friends, thank you dear watching my video up to last, but not forget to like, share and comment it, and subscribe my channel so that you get my video first of all.